So coal and petroleum, we will be discussing about the fossil fuels here because these are the fossil fuels. Okay. So what do you mean by natural resources? So the substances or the resources that we get from the nature that are known as natural resources. And natural resources, they are characterized as exhaustible and inexhaustible. So what is the meaning of exhaustible one? Exhaustible means that will exhaust in short interval of time. ठीक है, खत्म हो जाएंगे जो थोड़े टाइम बाद जो है वो क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे. So that means they are limited. So they are limited in number. So whatever the fossil fuels we are using today that are exhaustible. And coming to the inexhaustible one. They are not present in limited count. That means they are unlimited in nature. We can renew them timely again and again. Solar energy. Thermal energy ले सकते हो, biochemical energy. So all these energy types, they are inexhaustible source of energy. Okay. So inexhaustible substances, they are further classified as exhaustible. Sorry, exhaustible. They are further classified as renewable and उधर को बोर्ड ही नहीं है, इधर को जाना पड़ेगा. So the exhaustible resources, they are further classified as they are renewable and रिन्यूएबल का मतलब क्या है, जिसको आप रिन्यू कर सकते हो. ठीक है, जिनको आप रिन्यू कर सकते हो, रीजनरेट कर सकते हो दोबारा. ओके, राइट. सो हियर यू कैन गिव द एग्जांपल्स ऑफ forest, wind, solar energy, soil. These all are renewable resources of energy. Non-renewable resources of energy that can't be reversed. ठीक है, जिन रिसोर्सेज को हम दोबारा जनरेट नहीं कर सकते हैं वो किस में आते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में. फॉर एग्जांपल कोल, पेट्रोलियम. Okay, now coming to the fossil fuels that are actually the coal, petroleum and natural gases. ठीक है, in this chapter we will be studying in detail about the coal, petroleum and natural gas. तो ये सारे क्या है, एक तरह से फ्यूल का काम करते हैं. फ्यूल क्या है, ऐसी चीज जिसको हम क्या कर सकते हैं, बर्न कर सकते हैं. Okay, so the materials that are burned in order to get the energy, they are known as फ्यूल. तो यहाँ पर कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस भी जो है हम वो क्या करते हैं, बर्न करते हैं. ठीक है, ऑटोमोबाइल्स में यूज करते हैं, किचन में यूज करते हैं, इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं. सो दे बर्न द सब्सटेंसेस एंड गिव यू द एनर्जी, राइट. So coming to the first is in detail we will be studying about coal firstly. हाँ जी, कौन सा वाला? अभी बताया तो फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल्स. हाँ हाँ, बताने लगी हूँ. फॉसिल्स क्या होते हैं बेटा?
what do you mean by fossils? These are the remains of dead plants and animals. ओके तो जो भी प्लांट एंड एनिमल्स का रिमेन्स था डेट गेट ब्यूरिड इनसाइड द अर्थ, ठीक है, अर्थ के अंदर उसको ब्यूरी कर दिया या ब्यूरिड हो गया अपने आप, एंड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू, ठीक है, और जिसमें हम बात करेंगे अबाउट द कोल। कोल भी ऐसे ही बना है, ठीक है, कोल कैसे बना है, जो भी रिमेन्स था प्लांट्स एंड एनिमल्स का, जो भी रिमेन था, whatever the remains of the dead plants and animals that get buried inside the earth's surface under the conditions of high temperature, pressure and absence of air, that gets converted into coal, and this process is known as carbonization, ठीक है। So how the coal is formed? It is by the process of carbonization, ठीक है जी। Coming to the next is coal का structure कैसा है? That is hard, black in color. Where are the coal mines present? Okay, Bihar, Jharkhand, West Bengal, okay. So Jharia and Bokaro in Jharkhand and Raniganj in West Bengal. So these are the names of some coal mines, ठीक है। Raniganj in Jharia in आदिश, झारिया भी वेस्ट बंगाल में ही है, रानीगंज भी वेस्ट बंगाल में ही है। तुम कहाँ पर हो बेटा? तो रानीगंज इन वेस्ट बंगाल, ठीक है, एंड झारिया एंड बोकारो इन, okay, we have discussed about the carbonization, the chemical process which convert the remains of plants and animals into the coal, ठीक है। Now what are the uses of coal? कहाँ यूज करते हैं हम कोल को? हाँ जी राघव, very good. It is used in the thermal power stations to produce electricity or, हाँ जी, so that is used in the railway engines, ठीक है, to produce steam produce करने के लिए, in homes and industries. Okay, so the next products that we obtain from the destructive distillation of coal, right? So that is used in the thermal power plants also, कुछ organic compounds बनाने के लिए industries में. So all these are the uses of the coal. Coal में mainly कौन-कौन से elements होते हैं बेटा? Carbon, hydrogen and oxygen. अमोनियकल लिक्विड्स हैं तो नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होगी, ठीक है, ओके, इन स्मॉल अमाउंट्स।
So nitrogen and sulfur in small amounts. Next is how the coal is formed. ठीक है, कौन कौन सी types of coal जो हैं that are involved in this process. So next is formation of coal. फॉर्मेशन ऑफ कोल और टाइप्स ऑफ कोल्स. ठीक है, कि कोल की कौन कौन सी टाइप्स जो हैं फर्दर इंक्लूडेड है. हाँ जी, यस हरीश. पहले सबसे पहले क्या होता है, फॉर्मेशन भी बताओ ना साथ साथ में. बाय सम नेचुरल कैलामिटीज. ठीक है, earthquake or volcanic eruptions. So in these landslides, in these natural calamities, what they did over 3000 million years ago, बहुत पुरानी बात कर रहे हैं हम. Okay, 3300 million years ago. Okay, so the whatever the dead plants that were there during the volcanic eruptions, landslide, they get covered with the surface of the earth. उसके बाद next पीट कोल. सबसे पहले कौन सी टाइप आती है कोल की? Herman, just wait बेटा. That contains less than 60% carbon. इसके बाद सेकेंड कोल की टाइप lignite. The second one is lignite coal. That contains 60 to 70% carbon. Then the third is bituminous. 70 to 80% carbon. And the last, and that contains more than 90% carbon, and that is the best variety of coal. Okay, so coming to the next is destructive distillation of coal. हमने क्या करना है, हमने कोल को हीट करना है in the okay. So what we will be doing, we will be heating the coal. That will give you so that is ammoniacal. ठीक है. So coke, coal tar, coal gas and ammoniacal liquor, we get all these substances by heating the coal. And this process is known as destructive distillation of coal. Apparatus में क्या है हमारे पास? So that is the destructive distillation. ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एक बॉइलिंग ट्यूब है, राइट. इस बॉइलिंग ट्यूब में हमने क्या लेना है?
We'll be taking the coal in this boiling tube. Okay. Now further, this boiling tube is connected to conical flask के साथ आपने इसको कनेक्ट करना है. That is not mentioned in your NCERT. बस बनाने के लिए. ठीक है जी. So that is the boiling tube which consists of the coal. इसमें कोल पड़ा हुआ है, आपने इसको हीट करना है. You are heating this. ठीक है. जब आप इसको हीट करोगे तो what will happen? इसमें से जो है वो ब्राउनिश कलर के वेपर जो है वो फॉर्म होंगे. डार्क ब्राउनिश वेपर दे विल बी फॉर्म. इसको मैंने दूसरी फ्लास्क में क्या कर लेना, इकट्ठा करवा लेना. ठीक है. यहाँ पर सरफेसेस पे आपको क्या नजर आएगा, कार्बन, कंडेंस कार्बन. ठीक है. जब आपने इस डार्क ब्राउनिश वेपर को यहाँ पर कलेक्ट करवा लेना, यहाँ पर आपको दो लेयर्स दिखेंगे. ठीक है. एक होगी क्लियर, दैट इज ऑफ अमोनियकल लिक्विड होगी जो क्लियर वाली है. ठीक है. और जो दूसरी है दैट विल बी डार्क इन कलर, दैट इज कोल tar. एंड यहाँ पर एक गैस जो है वो इवॉल्व होगी. ठीक है. और जिसको हमने यहाँ से कलेक्ट कर लेना है. सो हमारे पास यहाँ पर जो रेजिड्यू बच गया दैट इज कोक. ठीक है. यहाँ पर जो हीट करने के बाद, स्ट्रांगली हीट करने के बाद जो रेजिड्यू बच गया दैट इज कोक. तो हमारे पास चारों के चारों चीजें आ गई हैं. कोक आ गई, कोल गैस आ गई, अमोनियकल लिक्विड आ गया और कोल टार आ गया. ठीक है. नाउ क्विकली टेल मी द यूजेस ऑफ ऑल दीज थिंग्स स्टार्टिंग फ्रॉम द कोक. हु इज गोइंग टू टेल द प्रॉपर्टीज ऑफ कोक? अगर हम कोक से स्टार्ट कर लें तो आपको आती है कोक की प्रॉपर्टीज? बोलो मत प्लीज क्लास. हाँ जी बड़ी स्टैंड अप. प्रॉपर्टीज बताओ या फिजिकल अपीयरेंस बताओ पहले कोक की कैसी होती है. टफ होता है और पोरस. ठीक है. पोरस होता है यानी कि बीच में पोर्स होते हैं. नेक्स्ट. वेरी गुड. क्या कलर होता है इसका? हाँ जी. नेक्स्ट. इट बर्न्स विदाउट स्मोक. इट बर्न्स विदाउट स्मोक, दैट मीन्स क्लीनर फ्यूल है. ठीक है. और हाँ जी. वेरी गुड. दिस इज द प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, बर्न्स विद क्लीनर फ्यूल. ठीक है. क्लीनर फ्लेम. और इसके यूजेस बताओ. फॉर वेरी गुड. दिस इज एन एसेंशियल रॉ मटेरियल फॉर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री. और reducing agents for the extraction of metals. Very good. Okay. It is used for the manufacturing of gases like water gas and producer gas. ठीक है. तो water gas and producer gas भी जो है वो हम फॉर्म करते हैं from the coke. समीक्षा बोलो, रिपीट करो सारी प्रॉपर्टीज. It is tough, porous and which color? It is tough, porous and grayish black in color. ठीक है. उसके बाद that is the pure form of carbon. कितना परसेंट कार्बन होता है इसमें? 98%. Okay. About the burning? Without smoke यानी कि cleaner fuel है. ठीक है. Uses. It is used in iron and steel industry as a raw material. Reducing agent for the extraction of metals. It is used in the manufacturing of हो गया बेटा raw material in steel and iron industry in order to produce water gas and producer gas. ठीक है. नेक्स्ट. कोल टार. राघव क्या कलर है कोल टार का? ब्लैक. कैसा टेक्सचर होता है? सेमी सॉलिड.
ठीक है, और मोर देन 200 कार्बन कंपाउंड्स का ये क्या होता है, मिक्सचर होता है। इट इज अ मिक्सचर ऑफ मोर देन 200 कार्बन कंपाउंड्स, ठीक है। और स्मेल कैसी होती है इसकी, अनप्लेजेंट स्मेल होती है, एंड इट इज वेरी थिक एंड लेस परमिएबल, पास नहीं होता है इजीली, ठीक है। जैसे हनी थोड़ा विस्कस होता है ना, गाढ़ा सा होता है, वैसे ही ये होता है कोल टार। ओके, हाँ जी, यूजेस बताइए बेटा। इट इज यूज्ड इन, but now that is replaced by which of the petroleum product, bitumen, or okay, synthetic dyes, drugs, explosive chemicals, ठीक है, प्लास्टिक, नेफ्थलीन बॉल्स, पेंट बनते हैं, ठीक है, फोटोग्राफिक प्लेट्स, रूफिंग मटेरियल्स, नेफ्थलीन बॉल्स जो है वो इससे बनती हैं, ठीक है, that are used to repel the moth. Lavish, repeat the properties. Coal tar की, okay, that is black in color, that is thick, ठीक है, सेमी सॉलिड है और लेस परमिएबल है, पास नहीं करता है चीजों में से। स्मेल कैसी है, अनप्लीजेंट स्मेल। यूजेस, वेरी गुड, मेटलिंग ऑफ द रोड्स, और हाँ जी गुरदीप बोलो। एक्सप्लोसिव, नेफ्थलीन बॉल्स, पेंट्स हो गया, ठीक है, फोटोग्राफिक मटेरियल में यूज होता है, रूफिंग मटेरियल्स में यूज होता है, ठीक है। सो देयर आर नंबर ऑफ यूजेस, ध्यान से सुनो बेटा, क्लास में बैठे हो। ओके, नेक्स्ट इज कोल गैस। हाँ जी बोलिए अकुल। गैस है तो डेट मीन्स फ्यूल की तरह काम करोगे आप लोग इसको, जैसे नेचुरल गैस है वैसे ही कोल गैस है, ठीक है। सो इट इज यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर मेनी ऑफ द इंडस्ट्रीज। हाँ जी नेक्स्ट, वेरी गुड। और किसका कॉम्बिनेशन है ये, that is the mixture of 3 combustible substances, हाइड्रोजन, मीथेन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, इनका ये मिक्सचर है। अर्लियर इसको कैसे यूज किया गया था लंदन में, एज अ स्ट्रीट लाइट, यानी कि लाइट सोर्स यूज किया गया था, बट अब हम इसको कैसा सोर्स यूज करते हैं, एज अ हीट सोर्स, ठीक है। लाइट की बजाय अब हम इसको कौन सा सोर्स यूज करते हैं, नॉर्मली हीट सोर्स, ओके। सो दैट वाज यूज्ड एज अ, हाँ जी वेरी गुड, दैट इज हैविंग हाई कैलोरीफिक वैल्यू, अगेन एक्सीलेंट फ्यूल है, क्लीनर फ्यूल है, ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू है दोनों की, ठीक है। पहले हमने कोक डिस्कस किया उसकी भी, ठीक है, अब इसकी भी, कोल गैस की भी, राइट। चलिए नेक्स्ट बताओ, अमोनियम कंपाउंड्स, अमोनिया का लीकर, ईशान, स्टैंड अप ईशान, हाँ जी, अमोनिया का लीकर, अमोनिया का लीकर, इसके क्या यूजेस हैं, वेयर योर मास्क, कोल टार के क्या यूजेस हैं, फ्यूल की तरह काम करता है ये, इज दिस यूज्ड एज फ्यूल, अभी हम कितना पढ़ के हटे हैं सारा, कहाँ था आपका ध्यान, शब्द बताएगा यूजेस ऑफ कोल टार, ध्यान से सुनो,
अनप्लीजेंट स्मेल है, और explosive, naphthalene balls, paints, drugs, perfumes, metaling of the roads, और फोटोग्राफिक प्लेट्स में यूज करते हैं, ठीक है, रूफिंग मटेरियल्स में। सिट डाउन। अमोनियकल लिकर के बताओ यूजेस। प्रभशरण, यूजेस ऑफ अमोनियकल लिकर। अमोनियकल का मतलब क्या है कि इसमें कौन सा कंपाउंड है? नाइट्रोजन है। तो हम इतना सारा नाइट्रोजन के यूजेस कहाँ पढ़ के आए हैं? किसके लिए इंपॉर्टेंट है नाइट्रोजन? ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से हम नाइट्रोजन के कंपाउंड्स बनाते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजर्स, यूरिया वगैरह जो है वो सारी चीजें, या और कोई नाइट्रोजन के जो कंपाउंड्स हैं वो हम किससे बनाते हैं? अमोनियकल लिकर से, ठीक है जी। सिट डाउन। नेक्स्ट इज पेट्रोलियम। Next is petroleum. We have done with the coal part. Now it's time for the petroleum. सबने देखा है? आपने तो पेट्रोल देखा है, पेट्रोलियम कैसा होता है? That is dark. ऑयली लिक्विड होता है, यानी कि हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट द क्रूड ऑयल, ठीक है। और अनप्लीजेंट स्मेल होती है। What is the meaning of this petroleum word, where the petra means and oleum means? So they are known as that are present in between the, ठीक है, लेयर्स ऑफ रॉक्स के बीच में आपको मिलेंगे ये, इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं? रॉक ऑयल कहते हैं। दे आर प्रेजेंट इन बिटवीन द लेयर्स ऑफ द अर्थ, ओके। चलिए फॉर्मेशन बताओ, हाउ द पेट्रोलियम इज फॉर्म। नवे बोलो। डेड ऑर्गेनिजम्स, यहाँ पर हम सी ऑर्गेनिजम्स की बात करें, ठीक है। जैसे वो लैंड वालों से बना था कोल, अब पेट्रोलियम जो है डेट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द सी ऑर्गेनिजम्स। तो जो सी ऑर्गेनिजम्स हैं या एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं या एक्वेटिक प्लांट्स हैं, उनकी जो बॉडी जो है डेट इज कवर्ड बाय क्ले, सैंड एंड रॉक्स, ठीक है। और देन व्हाट हैपेंड? वेरी गुड। अगेन सेम कंडीशंस है, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर है, एब्सेंस ऑफ एयर है, ओके, दैट गिव राइज टू द फॉर्मेशन ऑफ द पेट्रोल, राइट। पेट्रोलियम से ही ऑब्टेन करेंगे नेचुरल गैसेस। So how the components of the petroleum they are separated? So with the help of, कैसे हमने जो पेट्रोलियम के कंपोनेंट्स हैं उनको सेपरेट करना है? विद द हेल्प ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोल, ठीक है जी। यहाँ से हमारे पास क्या क्या कंपोनेंट्स आते हैं? बिटुमेन, बिटुमेन आएगा, पैराफिन वैक्स, पेट्रोलियम गैस, पेट्रोलियम गैस, नेचुरल गैस इसको आप कह रहे हो, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, ठीक है।
So they are the different substances that we obtained after the fractional distillation of petroleum or fractional distillation of crude oil, that is the petroleum. ठीक है जी. Uses बताओ bitumen के सबसे पहले. अच्छा, world, okay, tell me, world's first oil well was drilled in Pennsylvania, ठीक है, in USA in 1859. उसके बाद ऑयल कहाँ पर स्ट्रक हो गया था? इंडिया में, इन मखूम असम.